ارے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ اگر ہے تو کوئی دلیل دو، تو آج ٹی وی کے ڈیبیٹ والے بعد میں دلیل دیے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہ مناظرے کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کو پڑھیں، سینکڑوں دلیلیں آپ کو مل جائے گی۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا ڈیبیٹ میں جاوید اختر نام کا ایک شخص ہے، وہ مرتے مرتے ابھی بتایا جاتا، ہمیں تو کنفرم نہیں معلوم، پتا چلا کہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی کون سی پشت پہ وہ اولاد ہے، لیکن میں کہوں گا ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ نعمت ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور شکر ادا کیجئے اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور پیدا ہوئے تو کسی نے آ کر کان میں بتایا مبارک ہو، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو دولت آپ کے پاس ہے وہ دولت اڈانی کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے، کون امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم ان کا اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، امام اعظم کا دور ہے، ایک دہریہ آیا اور وہ دعویٰ کرنے لگا پورے علاقے میں کہ لوگوں مسلمانوں کا مذہب غلط ہے، اسلام جو پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ وہ کبھی کوئی مولانا یا کوئی پڑھا لکھا انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سنیے غور سے، توجہ سے، میری بات ادھر ادھر نہ جائے۔ کیا سوال کیا، کیا دعویٰ کیا کہ اللہ نہیں ہے، اور اس نے کہا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم آ جائے میرے سامنے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا، مجمع لگایا گیا، مناظرے کی یعنی کہ شرائط طے کر لیے گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کہاں پہ مناظرہ ہوگا، کہا فلاں میدان میں مناظرہ ہوگا۔ اس دہریہ نے کہا کہ سنیے، وقت مقررہ پر جو پہنچ جائے گا یا جو نہیں پہنچے گا، جو پہنچ گیا اس کی جیت ہوگی، اور جو نہیں پہنچے گا اس میدان میں اس وقت پہ اس کی ہار مانی جائے گی۔ مجمع لگ گیا، ہزار لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، وہ دہریہ ڈینگے مار رہا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ وقت پر نہیں پہنچے۔ اس دہریہ نے اعلان کرنا شروع کیا، کہا کہ لوگوں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک وہ ڈینگے مارتا رہا دہریہ، اتنے میں مجمع کی طرف سے لوگوں نے دیکھا امام اعظم دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذرا محبت سے تو بولو سبحان اللہ۔ اگر حنفی ہو امام اعظم کا احسان ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ امام اعظم چلے آ رہے ہیں، دہریہ کہنے لگا کہ اے مولانا آپ تو مناظرہ شرط کے مطابق ہار گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی مجبوری ہو تو میری مجبوری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی؟ مجمع سے آواز آئی ہاں ضرور سنی جائے گی۔ امام اعظم نے جو جواب دیا سنیے گا، امام اعظم نے فرمایا میں جب میدان مناظرہ میں آ رہا تھا تو ایک ندی بیچ میں پڑ گئی، میں اس ندی کے اس پار کشتی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے کشتی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے ناؤ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں آدھا گھنٹہ تک انتظار کرتا رہا، اچانک سے میں نے دیکھا کوئی کشتی والا تو نظر نہیں آیا، ایک کشتی خود بخود میرے سامنے آنے لگی، اس کا تختہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اپنے آپ سارے تختے آپس میں جڑنے لگے اور اپنے آپ ایک کشتی تیار ہو گئی۔ وہ دہریہ کہنے لگا آپ یقیناً پاگل ہو گئے ہیں، آپ عقل سے پیدل تو نہیں ہے، آپ کو کوئی شعور ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کشتی اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا او دہریہ ابھی ہی بس نہیں ہوئی بات، بلکہ کشتی اپنے آپ تیار ہو کر میں کشتی پہ سوار ہوا، وہ کشتی بغیر چلانے والے کے اپنے آپ چلنے لگی اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لا کر مجھے اتار دیتی ہے۔ پھر میں وہاں سے آیا، دہریہ ڈینگے مار رہا ہے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل والا بچہ بھی ایسی بات نہیں
کرے گا, तख्ता आपस में अपने आप कैसे मिल जाएगा, नाव अपने आप कैसे बन जाए. नाव को कोई बनाने वाला होना चाहिए, नाव को कोई चलाने वाला होना चाहिए. इमाम आजम ने जवाब दिया, ओ तहरिया, अरे मैं तो यही बता रहा हूँ कि जब एक कश्ती, एक नाव बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उर्से बगीदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुइनुद्दीन चतुर्वेदी. कैसे चल सकती है जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है. पूरे मजमे से आवाज आई कि मौलाना ने सही फरमाया है, इनका मजहब सही है. सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और कहा हुजूर कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दीजिए. ये मुनाजरा होता है, वो इमाम आजम है. मैं आपसे बताऊं और थोड़ी सी बात, वही इमाम आजम है. उनके जमाने में सबसे ज्यादा अगर तहरीयत का फितना फैला था तो इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में. तहरिया मुल्हिद उसे कहते हैं, यानी जैसे आपने अभी देखा डिबेट में जावेद अख्तर नाम का एक शख्स है, वो मरते मरते अभी बताया जाता, हमें तो कंफर्म नहीं मालूम, पता चला कि वो अल्लामा फजले हक खैराबादी की कौन सी पुश्त पे वो औलाद है. लेकिन मैं कहूंगा अरे ऐसा कुछ नहीं है. हमारे पास अगरचे कुछ भी ना हो, हमारे पास अगर अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है तो वो नेमते ईमान की दौलत है. इससे बड़ी दौलत हमारे पास नहीं है. और शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान के घर में पैदा किया, और पैदा हुए तो किसी ने आकर कान में बताया मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर पैदा हुआ है. अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए. जो दौलत आपके पास है वो दौलत अडानी के पास भी नहीं है. जो दौलत आपके पास हमारे पास है वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है. इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो ईमान की दौलत है. जरा बोलिए पूरा मजमा, सबसे बड़ी दौलत अगर है हमारे पास कोई तो कौन सी है? ईमान. ऊंचा बोले, वो कौन सी दौलत है? ईमान की दौलत है. ईमान की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है. ये वक्त इतना नाजुक है, आला हजरत ने पहले ही 100 साल पहले फरमा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है. यानी ऐसे ऐसे चोर फिर रहे हैं जो आपके ईमान को कब चुरा कर लेकर चला जाए कोई गारंटी नहीं है. अब जरा सुनिए बात इमाम आजम की आई थी, अगर सुन रहे हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा अगर इमाम आजम का एहसान हम सब पर है तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह. सुनिए, वही इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है. इमाम आजम अबू हनीफा रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है. एक बात को तो आपने समझ लिया, जब कोई कश्ती, जब कोई नाव बगैर बनाने वाले के ना बन सके तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है. जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है. अब जरा सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है. डिबेट चिल्लाने वालों, जो लोग ये कहते हैं हमारी जमात में आलिम नहीं है, आप कभी डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब के बयान को सुनो. कभी अगर आपको ये यकीन है तो आप शेख सिराज चिश्ती के बयान को जाकर सुनो. आपको अगर यकीन न हो, आज हमारे यहाँ स्टेज पर मेरे कुछ देर के बाद जो शख्सियत आने वाली है, अल्लामा मुफ्ती गुलाम चीलानी अजहरी को आप सुनकर यहाँ से जाना, तब आपको
पता चलेगा कि मदरसे ने आपको क्या दिया है। अरे कॉलेज में 80% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में तो कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं पूरी कौम को मिलाकर 1% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी मदरसा वहीदिया में आकर हजरत बच्चे को थोड़ा इंग्लिश जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को हिंदी जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को मैथ जरूर पढ़ाइएगा। ये सवाल जो आप मदरसे में आकर करते हो, कभी आपने कॉलेज में जाकर सवाल किया कि हजरत मेरी बेटी को कुरान मजीद की भी तालीम दीजिएगा, मेरी बेटी को हदीस भी पढ़ाइएगा? आप तो मदरसे में आकर 50 रुपए देकर आप एहसान जतलाते हो, हम चंदा देते हैं। यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं नजर आते हैं? और सवाल करने वाला वो होता है जिसका बच्चा खुद कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा है। खुदारा ऐसा न करें जो सवाल यहाँ पर करते हैं, आप कभी स्कूल कॉलेज में जाकर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारे बच्चे को अखलाक भी सिखाइएगा, हमारे बच्चे को किरदार का भी पैगाम सिखाइएगा, हमारे बच्चे की तरबियत भी कीजिएगा। हम तो देखते हैं कॉलेज में बच्चा पढ़ने गया था लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, वो लड़की पढ़ने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वो यानी इधर उधर घूम रही है। अगर घर आ जाए वो बाप अगर कह दे ये लड़का कौन है, वो फौरन कहते अरे चुप ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं कहना चाहूंगा ओ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वालों, याद रखना कौम की बेटियों तुम्हारी तादाद ज्यादा है। अरे तुमको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया दुनिया में बनना है, अपनी माँ के लिए जन्नत में जाने का जरिया तुझे बनना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, अगर स्कूल में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन किसी दूसरे की बच्ची को देखकर अपने कैरेक्टर पे कभी दाग न लगाना, अपने किरदार को कभी नीचे न होने देना, अपनी इज्जत और आबरू का कभी दूसरे के चक्कर में सौदा नहीं करना। बल्कि तू कॉलेज जाना, जैसे यहाँ कनीज़े फातिमा बनकर बैठी है, कॉलेज जाना। अगर तेरी सहेली कहे अरे तू क्या ये नकाब में आती है, अरे ये क्या तू बुर्के में आती है, अरे क्या तू जमाना में मॉडर्न जमाना है, लेकिन आज तू वही पुरानी घिसी फिटी सोच के साथ कॉलेज आती है। अरे तुमको तो ये पहनना चाहिए, तुमको तो वो पहनना चाहिए, तुमको तो सर के बाल को खोलकर स्कूल कॉलेज आना चाहिए। उसको जवाब देना फौरन कि सुन, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी, लेकिन मैं एक ईमानदार बाप की बेटी हूँ। और याद रखना तुझे जहाँ जाना है चली जा, लेकिन मेरे बाप और माँ ने मेरी खुट्टी में ये पिलाया है कि मैं घर में रहूंगी तू भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, और मैं कॉलेज आऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर आऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा। तो ये डिबेट, ये जो टीवी पे कल से परसों से वावेला मचा हुआ है, ये आज नई बात नहीं है, बल्कि वो तो बहुत पुरानी बात है। आज से लोगों ने ये दावा नहीं किया है। कहीं इमाम आजम है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा लोगों की भीड़ लगी है, इमाम आजम अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वहाँ भीड़ के पास पहुंचे, कहा क्या मामला है, कहा देख टहरिया आया है और वो 3 सवाल लेकर आया है और कह रहा है जो मेरे तीनों सवालों का जवाब दे देगा, मैं अगर कोई मुसलमान जवाब दे मैं उसका मजहब इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया बस्ती वालों तो फिर याद रखना तुम लोगों को मेरी माननी होगी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आपको चलना होगा, इस्लाम को छोड़ना होगा। सारे गांव वाले हक्का बक्का थे। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ लाए, कहा कि ओ दहरिया बता तेरा सवाल क्या है। दहरिया कहने लगा मेरे 3 प्रश्न है। कहा बोल क्या क्या प्रश्न है। इमाम आजम ने फरमाया जल्दी बोल। दहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है, जरा प्रश्न जहन में बैठाइएगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान थे। इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। कहा दूसरा सवाल ये है अल्लाह है
تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے یا نیچے دیکھتا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ دہریا سے امام اعظم نے فرمایا بول تیرا تیسرا پرشن کیا ہے؟ کہا کہ میرا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا اور کچھ ہے؟ کہا نہیں، بس 3 سوالوں کے جوابات چاہیے، 3 پرشن کے اتر چاہیے۔ امام اعظم نے فرمایا او دہریا تو کرسی پہ اونچی جگہ بیٹھا ہے، اب ذرا سن، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے سسٹم یہ ہے کہ اس کو نیچے بیٹھنا چاہیے اور جواب دینے والے کو کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ او دہریا تو پہلے نیچے اتر کے آ جا۔ دہریا نیچے آیا، امام اعظم ابو حنیفہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئے، فرمانے لگے بول اب تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ دہریا کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے مچل کے جواب دیا اے دہریا اب تک تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ ارے اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت عطا فرمایا تو مجھے کرسی پر بیٹھا رہا ہے، اور تجھے اللہ ذلیل کر رہا ہے تو کرسی سے اتار کر نیچے بیٹھا رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہمیں عزت دیا اللہ نے، ہمیں کرسی پر بیٹھا دیا، تجھے ذلیل کیا، کرسی سے اتار کر زمین پہ بیٹھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ اب باد ذرا زندہ سنیے گا، ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اور لہک کر پورا مجمع لبیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے، اور سب سے زیادہ رسول پاک سے محبت ہے تو کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا لو، پورا مجمع لہرا کر بولو لبیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے۔ ارے بھائی اگر آپ زبان نہیں دے سکتے ہو، لوگوں نے تو اپنی جان تک دے دیا ہے حضور کے نام پہ، ہم نے تو صرف زبان سے کہنے کو کہا ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جو قوم بولنے والی ہوتی ہے اس کو اس کا مکمل حق دیا جاتا ہے، جو قوم بولتی نہیں ہے ان کی نسلیں گونگی ہوتی ہے۔ تو ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، امام اعظم نے فرمایا بول تیرا دوسرا پرشن کیا ہے؟ بول تیرا دوسرا پرشن کیا ہے؟ دہریا کہنے لگا میرا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ ابا سے بولو کیا کہا؟ اللہ ہے تو اللہ، اور اسی آواز میں اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ ارے آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا پرشن کیا؟ اللہ ہے تو اللہ، اور اسی آواز میں اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ اب ذرا سنیے گا، امام اعظم نے فرمایا یہ بتا موم بتی دیکھا ہے؟ ارے بھائی یہ موم بتی ہے، اس کو کیا لوگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اگربتی؟ ارے بولو نا کیا بولتے ہیں؟ موم بتی۔ موم بتی کا دور دیکھے ہیں؟ ہاں بھائی ابھی بھی تو بہت جگہ، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ قبرستان میں کبھی جلائے نہ جلائے، باپ کی قبر پہ جائے گا، ماں کی قبر پہ جائے گا، یہ الحمدللہ نہیں پڑھ پاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پائے گا، 20 کو اگربتی چاروں طرف سے گاڑ دے گا، موم بتی چاروں طرف سے گاڑ دے گا۔ بھائی ایک موم بتی اور کہا چاروں طرف موم بتی جلانا، یہ فضول خرچی ہے۔ کبھی علماء نہیں کہیں گے کہ کچھ لوگ تو جا کے باپ کے ماتھے پہ ہاں سر پہ گاڑ دیتا ہے۔ اب بتاؤ ایک باپ کو ایسے پتہ نہیں کس حال میں ہے، اوپر سے جا کے اور موم بتی ڈال دیا۔ دیکھ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتویٰ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے اگر اگربتی بھی خوشبو کے لیے جلانی ہو تو کم سے کم قبر سے 2.5 ہاتھ کی دوری پر جلاؤ، قبر پہ مت گاڑو، اور ایک مٹھا جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1-2 اگربتی خوشبو کے لیے جلا دو۔ موم بتی چاروں طرف گھما گھما کے ایسا لگتا ہے نا، دور ہی سے قبرستان کو دیکھیے گا کچھ نہیں نظر آئے گا، لگے گا کہ باپ رے سب کی قبر پہ ایک دم نور برس رہا ہے۔ اچھا ہاں بھائی شب برات ہی کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی شب برات آنے والی ہے۔ شب برات میں دیکھیے چاروں طرف گاڑ دے گا، وہاں سے چلے گئے کی پڑھ لو ہو کچھ جانوین کرے
कुछ जानता ही नहीं है, वो पढ़ेगा क्या? जाएगा इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए। जमीन लेगा तुम, मकान बाप का तुम लेगा, गाड़ी बाप की तुम लेगा। अब फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, फातिहा जाके कब्र पे इमाम साहब पढ़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा कम से कम अपने बच्चों को इतना कुरान पढ़ा दे, कुरान की तालीम इतनी सी दे दे, आपका बेटा किसी का मोहताज ना रहे। और याद रखिएगा, एक मुफ्ती साहब उस दर्द के साथ दुआ नहीं कर सकते हैं जिस अंदाज में आपका बेटा दर्द के साथ दुआ कर सकता है। और याद रखिए, एक मौलाना की दुआ बाद में, एक मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, अगर कोई बेटा बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे, रब की रहमत झूम जाती है, आवाज आती है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके बेटे ने मुझे पाक कह के पुकारा है, तो मैंने इसके बाप को भी गुनाहों से मैंने पाक कर दिया है, इसके बाप को भी मैंने अज़ाब कब्र से निजात दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मोमबत्ती है। बात चल रही थी, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, वक्त बर्बाद ना हो। इमाम आज़म ने फरमाया, ये मोमबत्ती देखा है? कहा देखा हूँ। कहा ये बताओ, मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती को जलाया, ये बताओ इसकी रोशनी किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पश्चिम जा रही है या पूरब जा रही है? इतना सुना, दहरिया ने कहा मौलाना बेवकूफ समझते हो, अरे ये मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ जा ही नहीं सकती, इसकी रोशनी तो चारों तरफ को जगमग जगमग कर रही है, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कहा कि अब तक नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा अरे एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जब अपने चारों तरफ को जगमग जगमग रोशन रोशन कर रही है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह वाह, ये कैसा बेवकूफ लोग है जो इसको नहीं समझ रहा है। देखिए, मैंने श्वेताश्वर में पढ़ा, ये इमाम आजम ने तो फरमाया ही, लेकिन दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या लिखा है? मैंने जो मंत्र पढ़ा, बीच बीच में पढ़ते जाऊं, मौलाना निजाम साहब गुस्सा हो जाएंगे नहीं? ये लोग हमको कहते आप मगरिब बादे आ जाइए, हम तो कहते 2 बजे के बाद बुलाइए हमको। हाँ, जब भी रहे, लेकिन मजमा अच्छा भाई, भीड़ से कुछ नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा, कम लोग हों लेकिन मुस्तफा के दीवाने बैठे हो। जरा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। ये देखिए, किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद। लिखा है, इदारनी कर्माणु मुख्यवीनी अवसुरती कर्मा को मुख्य विनियोग योग दर्शिक। इसमें लिखा हुआ है, कहा के लोगों, ये चांद को, ये सूरज को, ये दीजिए, ये इस किताब में ये बातें लिखी है। मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा है, इसमें लिखा है कि लोगों, पहला मंत्र जो मैंने पढ़ा था, इसमें लिखा गया कि ये चांद जो है अपने आप नहीं चमकता है, ये सूरज अपने आप नहीं चमकता है, ये पेड़ में यानी कि हवा ये अपने आप नहीं आती है, ये पानी अपने आप नहीं है, ये जमीन अपने आप नहीं है, ये सूरज में रोशनी, सितारों की जगमगाहट अपने आप नहीं है, बल्कि ये कहीं से पावर इसको मिलता है, फिर उसके बाद ये अपना पावर लोगों के सामने दिखाता है। ये तो समझ गए, लेकिन आजकल के जावेद जैसे लोगों को ये बात समझ में, जरा गौर से सुनिए। अब दहरिया ने कहा, इमाम आजम ने फरमाया, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? जो सवाल आज भी हो रहे हैं, लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या है, टाइम को सेट करते हैं, कुछ तो होगा, लेकिन याद रखिएगा, ये टाइम को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। जमीन को अभी मैं साबित करूंगा किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जरा गौर से सुनिए, कहा तीसरा प्रश्न क्या है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया, ये बताओ, क्या तुम्हें गिनती आती है? गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। क्या गिनती करो? ये मस्तान का बेटा है,
अरे किसका बेटा? अब्दुल रहमान। अच्छा, हम सोचे वो कारी एहतशाम साहब का बेटा, बड़ा अच्छा है। अरे मोहम्मद मंजूर साहब, हाँ सिकंदर साहब, आप काहे मुंह लटका के बैठे हैं? अपने इलाके में मत बैठिए, नहीं तो दुआ दे के जाएंगे। और आपको जब दुआ दे देंगे, हमको घरवाली से भी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ अगर घर में मामला हुआ है तो उसको वही छोड़ दीजिए, वरना हमसे तावीज लीजिए, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हमारी तावीज में बहुत असर है। हाँ, जिसको हम देते हैं 2-4 महीना वो मेरे पास भी नहीं आता है। हाँ, और जल्दी देते नहीं है, देते हैं तो दूरे भाग जाता है। हाँ, जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तीसरा प्रश्न ये अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया क्या तुम्हें गिनती आती है? कहा कि बिल्कुल। कहा गिनती करो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 तक पहुंचा। इमाम आजम ने फरमाया उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। हम लोगों को भी स्कूल में पढ़ाई गई उल्टी गिनती, आप लोग भी पढ़े होंगे। अभी ना वो 1 मंजिल आ गया है। हम लोग तो भाई दुक्का 2 3 का 3 ही पढ़े हैं। अभी तो बाप रे इस तरह बोलता है, 250 बोलिएगा तो समझ नहीं पाता है, बोलता अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन सुनिए, कहा उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती कर। उल्टी गिनती कर दहरिया करना शुरू किया। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87। कहा और आगे बढ़। आया 80 70 60 50। कहा और आगे बढ़। 40 30 20 19। कहा और आगे बढ़। और आगे बढ़ा। कहा 10 9 8 7। कहा और आगे बढ़। कहा के और आगे बढ़ू। कहा 5 4 3 2 1। कहा और आगे बढ़। कहा ए मौलाना हमें जाहिल समझते हो? अरे इससे आगे कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के कुछ नहीं है। कहा के नहीं 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 होता है। कहा एक तो आखिरी है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के तूने अभी तक नहीं समझा, अल्लाह का कुरान ने कहा है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अरे जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के अब जरा सुनिए गौर से, जरा ध्यान से सुनिए। इमाम आजम अबू हनीफा के इन सवालों के जवाबात को सुनकर सारे लोग खड़े हो गए और फख्र से कहा कि सबसे अच्छा मजहब अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीने, और ऊंची आवाज में वो दीने इस्लाम है। सैकड़ों दलीलें मौजूद है। इमाम शाफई ने भी जवाब दिया है। इमाम शाफई ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह, किसी ने सवाल किया अल्लाह है या नहीं है। इमाम शाफई ने जो जवाब दिया, इमाम शाफई ने फरमाया कि शहतूत का दरख्त देखा है, शहतूत का दरख्त का पत्ता एक तरह का होता है, उसका मजा भी एक होता है, लेकिन शहतूत के दरख्त को अगर कोई बकरी खाए तो बकरी खाकर मेगनी करती है, अगर कोई गाय खाए तो गाय खाकर गोबर भी करती है, दूध भी देती है। और उसी शहतूत के पत्ते को अगर मधुमक्खी खा ले, उसके रस को चूस ले, तो वो मधुमक्खी शहद पैदा करती है। कहा कि मतलब क्या है? कहा मतलब ये है, अरे शहतूत के दरख्त में एक तरह का मजा है, लेकिन अलग अलग जानवरों ने खाया, कोई दूध दे रहा है, कोई शहद दे रही है मक्खी। तो ये बात साबित होती है कोई ना कोई है जो इस शहतूत के दरख्त में के पत्ते के रस से शहद भी पैदा करता है, दूध भी पैदा करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। जरा और खुलासा करते चलूं, वरना तो लोग कहेंगे भाई इधर पढ़ा उधर गया। जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा एक बात और सुने, मैंने एक चीज का कहा, इर्तिदाद, बढ़ते हुए इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। मतलब आपने समझा, यानी अगर कोई सवाल करे आपसे कि अरे अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह अगर है तो कोई दलील दो, तो आज टीवी के डिबेट वाले बाद में दलील दिए हैं। हमारे बुजुर्गों ने के मुनाजरे को उठाकर देखे, सीरत को पढ़ें, सैकड़ों दलीलें आपको मिल जाएगी।